Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 9 of chemistry. So सबसे पहले हम introduction देख लेते हैं इस chapter का. So first of all you have to know about the chemical reaction. What is a chemical reaction? A process in which two or more substances combine to form a new substance. एक ऐसा process, एक ऐसा अमल जिसमें दो या दो से ज़्यादा substances जब combine करें या react करें तो new substances बना दें. For example, A plus B, when react they form AB. So this is called a chemical reaction. So in a chemical reaction, the substances that combine, they are called the reactants. कि वो substances जो कि किसी भी chemical reaction में combine कर रही हैं, react कर रही हैं, they are called the reactants. And the new substances formed in a chemical reaction, they are called the products. कि जो नई new substances बनती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट. So what is a chemical reaction? The process in which two or more substances combine, they form a new substance, and the substances that combine, वो substances जो किसी भी reaction में combine करती हैं, they are called reactants, and the new substances that are formed in a chemical reaction, they are called the product. So the difference between reactants and products is important for short questions. एंड इसकी आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 2H2 plus O2, two molecules of hydrogen gas when combined with one molecule of oxygen, they react in the presence of a catalyst called platinum, and in the presence of heat energy, they form 2H2O, two molecules of water. So in this example, the hydrogen and oxygen gases, they are reacting in this reaction. So they are called reactants, and water is produced. Water is a new substance. Water एक new substance है जो कि produce हुआ है इस reaction में. So water is called a product. So here is the example of a chemical reaction. When reactant A combines with reactant B, they form a product AB. कि जब हमारे पास रिएक्टेंट A कंबाइन करे रिएक्टेंट B के साथ तो वो प्रोडक्ट बनाता है AB. और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सब के सब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स में, वो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन. This is the definition of a complete reaction. A reaction in which all the reactants have been converted into products. It is called a complete reaction. Complete reaction का मतलब है एक मुकम्मल रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट्स बाकी ना रहें और सब के सब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स में. और कंप्लीट रिएक्शन को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? द रिएक्शन दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. वो रिएक्शन जो कि वापस ना जा सके. तो उस रिएक्शन में क्या होगा कि जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील ना हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन, दोबारा से रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स में तब्दील ना हो, दे डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, दे आर कॉल्ड द irreversible reactions. And irreversible reactions are supposed to complete reaction. उन्हें हम फर्ज कर लेते हैं कि वो complete reactions हैं क्योंकि उसमें हमारे पास जो है अगर कोई एक दो मॉलिक्यूल्स रह भी जाते हैं रिएक्ट करने से तो वो नेग्लिजिबल हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं. और ये रिएक्शंस जो हैं इनको हम सिंगल एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं. सिंगल एरो दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सिंगल एरो होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. और ये कौन से तरफ रिएक्शन का इशारा करता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से तब्दील हो जाएं रिएक्टेंट्स में, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. Those reactions in which products can recombine to form reactants, they are called reversible reactions. Reversible का मतलब है वो रिएक्शंस जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में काम कर सके. तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से तब्दील हो जाएं रिएक्टेंट्स में, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं reversible reactions. And reversible reactions can be represented by a double arrowhead, जिसमें हमारे पास ये जो अपर एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाएं तो रिएक्शन होता है लेफ्ट टू राइट, और जब प्रोडक्ट्स दोबारा से तब्दील होकर रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाएं तो ये एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो हमारे पास इस रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शंस होते हैं.
एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। कि हमारे पास जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट में तब्दील हों तो हम उसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट्स दोबारा से तब्दील हो जाएं रिएक्टेंट्स में तो हम उसे कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। फर्स्ट करेक्टर क्या है कि दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। सेकंड करेक्टर है दीज रिएक्शंस कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड अ रिवर्स रिएक्शन। और थर्ड करेक्टर है कि दीज रिएक्शंस आर नेवर गो टू कंप्लीशन, कि ये रिएक्शंस कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकते क्योंकि इनमें हमेशा प्रोडक्ट्स दोबारा से तब्दील हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में और रिएक्टेंट्स तब्दील होते रहते हैं प्रोडक्ट्स में। तो ये प्रोसेस जब जारी रहता है तो रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता।